Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pavan Gauka. Welcome to a class for accounting and technology. And yes, in this chapter, we are not going to study exactly what Tally is or, how ERP or SAP works like. It isn't this. No, guys, this class is not going to teach you uh, what is it like. It just will teach you how the general technological adaptations have taken over accounting and what are the nuances what every chartered accountant should know of when it comes to technology and accounting together. So basically, everything taken together. जैसे हम लोग बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम हैज बीन कंप्लीटली टेकन ओवर बाय विच सॉफ्टवेयर which software? CBS. core banking system. It's the heart of the banking system today. यानी CBS अगर डाउन हुआ, अगर कोर बैंकिंग सिस्टम डाउन हुआ, बैंकिंग ही बंद हो जाएगी. इस लेवल पे बैंकिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हो चुका है. तो बेसिकली नथिंग एल्स बट इट हैज हेल्प्ड अस टू डू ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस. जो भी रिपीटेटिव काम है उसको क्विकली करना है तो आपको ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस? इट स्ट्रीमलाइंस डेटा एंट्री, हर चीज फास्ट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, सेव टाइम एंड मनी एंड फैसिलिटेट्स कंप्लायंस. सो या द memory code to learn this is improving decision is safe. Improving decision, is is say saving, then safe, streamlining data entry, accelerating data process, facilitating compliance and enhancing accuracy. What do you mean by facilitating compliance? What do you mean by the word compliance? Compliance. ओए मेरे भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय compliance? Regulatory compliance like All right, AML, you have to make sure that the system follows all the laws. All right. Anyway, so it arises the need, challenges क्या है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, रिस्क होती है डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स की, और लोगों की जॉब जा सकती है probably, yeah. We move on to the next concept and that is RPA. RPA, yes, robotic process automation. RPA is robotic process automation and सारा काम आरपीए में रोबोट्स करेंगे. ट्रू और फॉल्स? सारा काम आरपीए में रोबोट्स करेंगे. ट्रू और फॉल्स? या ट्रू और फॉल्स? टेल मी गाइस. false. फॉल्स. गाइस, हम लोग जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग जो अकाउंटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, सारा काम रोबोट्स करेंगे, ये एकदम सरासर गलत है. इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स. बेसिकली रोबोट्स नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर बॉट्स करेंगे. सॉफ्टवेयर बॉट्स करेंगे. ठीक है, बॉट्स कहते हैं इनको. इसलिए जो काम मैनुअल है वो एक सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, इसलिए उस सॉफ्टवेयर को बॉट कहते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. So guys, it has got nothing to do with robots, it has got everything to do with software bots. Robotic process automation is an emerging tech that revolutionizes financial reporting process. RPA utilizes software robots, or also called as software robots, also called as bots, to automate manual and repetitive tasks. Guys, जहां भी कोई स्ट्रैटेजिक काम होगा, थॉट प्रोसेस का काम होगा, वहां पे ये सब काम नहीं आता. ये सिर्फ मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग में, एनालिसिस में और रिपोर्टिंग में, बाय मिमिकिंग ह्यूमन इंटरैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मिमिकिंग? मिमिकिंग यानी क्या? मिमिक्री करते हैं ना हम, Copy करना, हाँ. copying some human interactions with digital system. RPA bots can extract and consolidate data, perform calculation, generate reports, and ensure compliance with the accounting standards. Again आ गया compliance with the accounting standards. तो सारा compliances खुद कर देगा, सारा compliances खुद कर देगा. अच्छा, by the way, ये compliances accounting से related suggest कौन करता है? Who tells us that this is the compliance for accounting standards? Anyone? हम्म. ओए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टेल मी जल्दी. सॉफ्टवेयर में इनपुट रहता है नो शायद. नो 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 नो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये है, ये कंप्लायंस करना है आपको.
ये कौन बताता है? कम ऑन, इट्स नो ना मोहित, व्हाट इज दिस? यूजर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है कंप्लायंस हुआ है नहीं चेक करना, ऑडिट। ओके, थोड़ा पढ़ने का जरूरत है, चलो ध्यान रखिएगा। वी मूव अहेड। द अडॉप्शन ऑफ आरपीए इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी, एनहांसेस एफिशिएंसी, फ्रीज अप वैल्यूएबल टाइम फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज। अरे हम लोग रिपीटेटिव काम बार बार करके खुश नहीं हो सकते। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफी मंझे हुए होते हैं, काफी एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने बार बार रिपीटेटिव काम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपना काम स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज में डालना चाहिए जिससे कंपनी को फायदा होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। Moreover, RP enables organization to achieve timely reporting, cost saving, increased data integrity, ultimately leading to more reliable and insightful financial information. So guys, again, आज आके ना आपको ना यही आंसर्स मिलेंगे। ऑटोमेशन के कोई भी आंसर में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स यही पढ़ने मिलेंगे। कौन से? एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, यही बार बार घसीटा जाएगा पॉइंट। हम लोग भी रेडी रहेंगे इस आंसर को लेके। ऑलराइट, सो गाइस एक जनरल उन्होंने एग्जांपल दिया है, मुझे लगता है आरबीए पे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। आरबीए पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मैं बता रहा हूं 100% बता रहा हूं, इस चैप्टर को स्टूडेंट्स टच भी नहीं करेंगे। एम आई राइट गाइस? आप भी नहीं करते टच, व्हाट से? एम आई राइट? और 4 मार्क का ना क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आरबीए पे ही आएगा, बिकॉज दिस इज अ न्यूली इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट। इट वाजंट देयर इन सीए फाइनल पहले, इट वाजंट देयर इन ईआईएस एट सीए इंटर लेवल पहले। दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिवली न्यू कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर आपको आंसर में लिखना है, सॉफ्टवेयर बॉट्स, ये वर्ड उन्हें दिखने चाहिए आंसर में। और मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क फाइनेंशियल डेटा प्रोसेसिंग का, एनालिसिस का, रिपोर्टिंग का ये खुद कर देगा। और ये ह्यूमन इंटरेक्शंस मिमिक करेगा विद डिजिटल सिस्टम्स एंड इंश्योर्स कंप्लायंस बाय जनरेटिंग रिपोर्ट्स। और इससे फायदा ये होता है, एनहांसेस एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, फ्रीज अप द वैल्यूएबल टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफिशिएंसी? फिर से पूछ रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी पूछा था। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? कम ऑन। एफिशिएंसी, optimum utilization of all the resources. Correct. So using RP and financial reporting, let us consider XYZ company, a group of companies that prepares CFS in accordance with IND AS 110. To streamline their financial reporting process, XYZ company decides to leverage robotic process automation, RBA. What do you mean by the word leverage? Leverage यानी क्या? Come on. एक मिनट, मुझे क्वेश्चंस पूछना अलाउड तो है ना बाय द वे? वेरी गुड नीरज, गुड एटीट्यूड, बहुत बढ़िया। यस, लेवरेज, leverage means to put into use for some kind of benefit, that is called as leverage. Put into use for some kind of benefit. तो चलो देखते हैं। In that case, steps involved would be, पहला, XYZ company has multiple subsidiaries, each maintain their own financial data. RPA bots are implemented to automate the process of extracting financial data from the subsidiary systems and consolidating it into parent companies फाइनेंशियल सिस्टम। सो गाइस हमें सीएफएस बनाना है, कंसोलिडेशन करना है, तो हर सब्सिडरी से डेटा क्या करना पड़ेगा? एक जगह लाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट करके, तभी तो कंसोलिडेट हो पाएगा, राइट? आपके सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? सीए फाइनल में एफआर में है? परफेक्ट। तो गाइस who knows better than you then? The bots retrieve, bots यानी कौन? Who are the bots? बॉट्स, सॉफ्टवेयर बॉट्स, सॉफ्टवेयर बॉट्स जो रोबोटिक प्रोसेस का काम करेंगे। द बॉट्स रिट्रीव द फाइनेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिट्रीव? सारी चीज को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं रिट्रीवल। द रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, परफॉर्म नेसेसरी करेंसी कन्वर्जन। हो, करेंसी कहां से आ गई? करेंसी कहां से आ गई? अगर फॉरेन, वेरी गुड, क्या बात है प्रियंका, इट वाज इट प्रियंका? वेरी गुड आंगी, अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी अगर होगी तो फिर उसका करेंसी अलग रहेगा, ठीक है? व्हाट विल बी द करेंसी इफ इट इज अ जर्मन कंपनी, जर्मन सब्सिडरी?
मोहित, तुमसे ज्यादा उम्मीद थी हमें। नीरज, जर्मन यूरो यूरो, जर्मन यूरो कुछ नहीं होता, पूरे यूरोप, यूरोप के लिए यूरो होता है, ठीक है। गुड, सो यूरो इट इज, एंड मेंटेन देयर ओन फाइनेंशियल डेटा। RPA bots are implemented to automate the process of extracting financial data from the subsidiary systems and consolidating it into a parent company's financial system. The bots retrieve the relevant, okay, as per Ind AS 110, intercompany transaction need to be eliminated to avoid double counting and provide the true representation of the group's financial position. RPA bots are programmed to identify the intercompany transaction within the consolidated financial data. The bots automatically eliminate these necessary transactions by adjusting the corresponding accounts and generating elimination entries, simplifying the process and reducing potential for errors. The bots retrieve the CFS from the parent company's financial system and apply the necessary consolidation adjustments. They perform calculations for non-controlling interest, equity, and comprehensive income attributable to parent and non-controlling interest. The bot generates the CFS, consolidated balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, ensuring accuracy and consistency in the financial reporting process. So guys, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है स्टेप्स, आरपीए की स्टेप्स क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की स्टेप्स क्या है सीएफएस बनाने में? अलग अलग सब्सिडरी से डेटा क्या करेंगे पहले? एब्सोल्युटली करेक्ट, पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारे जो कन्वर्जन्स है वो करेंगे, रिकंसिलेशन कोई चाहिए वो करेंगे, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे, 110 एएस को, इंड एएस 110 को यूज करेंगे, और डबल एंट्री ना हो इसलिए इसलिए इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेटेड ट्रांजैक्शंस को जो भी एडजस्टमेंट चाहिए वो दे देंगे, पोटेंशियल फॉर कोई एरर्स होगा तो कम हो जाएगा। सीएफएस एक सिस्टम से बनाया जाएगा और जो भी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है वो की जाएगी, और सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जाएंगे फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इक्विटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और एक फाइनली एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जनरेट होगा। सो गाइस दैट्स इट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस याद रखना, मुझे ऐसा लगता है स्टेप्स तो नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्सप्लेन आरबीए, ऐसा ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, एक्सप्लेन आरबीए, खत्म, आरपीए खत्म, दैट्स इट। एक्सप्लेन आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यहां तो आधे स्टूडेंट्स फुल फॉर्म भी नहीं लिख पाएंगे, आधे स्टूडेंट्स फुल फॉर्म भी नहीं लिख पाएंगे, हमको ये छोटा सा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ का आंसर रेडी करना है। सुबकुल सर 4 क्वेश्चन है, 3 पैराग्राफ में मार्क्स मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम है, क्वांटम का खेल नहीं होता, क्वालिटी का खेल होता है। एनीवे चलो, शैल वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? चलो, टेल मी where is the rain water stored? Where is the rain water stored? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 5th स्टैंडर्ड का। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, समवेयर समवेयर इन द क्लाउड। विच क्लाउड? काला वाला, विच क्लाउड? Forget it. Which cloud? That's less important. Okay. So guys, एक फ्रेंड है मेरा जतिन, फेसबुक पे 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स अपलोड करी है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स कहां स्टोर्ड है? अगर मुझे फेसबुक का डेटा चाहिए तो मुझे उसी सिस्टम पे एक्सेस करना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स? क्या उसी कंप्यूटर पे लॉगिन करना पड़ेगा, या फेसबुक की सारी फोटोग्राफ्स मैं किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूं? टेल मी। छोड़ो ये, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। कारण एक स्टूडेंट है मेरा, 68 फोटोग्राफ्स अपलोडेड है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वेयर आर दे स्टोर्ड? ये फेसबुक का डेटा, ये इंस्टाग्राम का डेटा, वेयर आर दीज फोटोग्राफ्स स्टोर्ड? These are stored somewhere in the database, somewhere, and where is that somewhere? कहां है फेसबुक का सर्वर, कहां है इंस्टाग्राम का सर्वर? Forget it. How to access data from Facebook or Instagram? How to access it? How do you access that data? जल्दी।
You access the data through internet. This phenomena of accessing something through internet is called as cloud. This phenomena of accessing something is called as cloud. और फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास हमारा डेटा स्टोर्ड है, राइट? उनके पास, फेसबुक के पास इंस्टाग्राम का डेटा, इंस्टाग्राम के पास हमारा डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस होगा? फ्लॉपीज या सीडीज? टेल मी, मेक इट फास्ट. व्हाट विल दे हैव? इतना सारा डेटा है. storage system on सब लोग इंस्टाग्राम यूज कर चुके हैं? आर यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम? Very good. You can certainly follow me on Instagram, insta_PAVANN, if you feel like. Okay. So guys, for storage, उनके पास क्या होगा? फ्लॉपीज होगी बहुत सारी या फिर सीडीज होगी? Tell me. Make it fast. बड़े storage system होंगे. चलो, और ऑप्शन देते हैं आपको, और ऑप्शन देते हैं. ठीक है. हाँ, क्लाउड का ही, क्लाउड बोल के खत्म नहीं हो जाएगा ना कंसेप्ट. कुछ तो डिवाइस लगेगा. पेन ड्राइव होगी बहुत सारी, 2 मिलियन पेन ड्राइव्स दे विल हैव. अच्छा, हार्ड डिस्क होगी बहुत सारी. कम ऑन, जल्दी, यस और नो? नो सर, हार्ड डिस्क भी कितनी खरीदेंगे? फॉर सच स्टोरेज इंस्टाग्राम, फेसबुक विल रिक्वायर बड़े बड़े ऑप्टिकल जुक बॉक्सेस. वन जुक बॉक्स, द कैपेसिटी इज 20 टेराबाइट्स. और ऐसे जुक बॉक्स, ये सारे, ऑल दीज जुक बॉक्सेस आर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस. दे आर मिनी कंप्यूटर्स ही बोल सकते हैं आप उनको. ऑल दीज जुक बॉक्सेस आर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस. और इन रिसोर्सेस को कैसे एक्सेस करेंगे? इंस्टाग्राम का डेटा यहां स्टोर्ड है, फेसबुक का डेटा यहां स्टोर्ड है. इनको कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग. डेटा हमारे पास होता ही नहीं है, हमें इनकी सर्विस सब्सक्राइब करनी है. डेटा हमारे पास होगा ही नहीं. सो गाइस, हाउ टू रीच डेटा इन द क्लाउड? टेल मी, हाउ टू रीच डेटा इन द क्लाउड? कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेट की हेल्प से. तो चलो, वी मूव ऑन. Cloud computing refers to the delivery of computing services over the internet. It allows the accountant to access the data and software from any device with an internet connection. Guys, just check this. ये डायग्राम, ये देखो अच्छे से. क्या हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं? Yes, sir. क्या हम इसको हमारे स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम इसको हमारे लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम इसको हमारे आईपैड से एक्सेस कर पाएंगे? Guys, no matter what device, you can access it quite easily. So cloud computing refers to the delivery of computing services over the internet. It allows accountants to access data and software from any device with an internet connection. तो याद रखना, अगर कुछ याद नहीं आया वक्त पे, तो याद रखना AA. What is AA? Anywhere access. What is AA? Anywhere access. और ये क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली कोविड-19 से. कैसे सर? पढ़ते हैं. The entire world was hit in 2020 with probably the biggest black swan event of the past couple of decades, COVID-19 pandemic. The continuous lockdown severely impacted business. Operations came to a standstill. This in turn led to viewing cloud computing as a serious alternative compared to traditional clients of architecture in physical location controlled by entities themselves. पूरा आपको बिजनेस आपके फिजिकल लोकेशन पे होके पूरा बिजनेस रन करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ये हमें कोविड-19 में पता चला, क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेस को एक्सेस करना मुश्किल था. तो 2020 के लॉकडाउन ने क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इंपेटस दिया और लोगों से क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट यूज करवाया, अडॉप्ट करवाया. क्या हमने भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर ली थी? सर हम तो इंस्टाग्राम पहले भी यूज करते थे, अभी भी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी अवगत थे इस कॉन्सेप्ट से. बट देन बहुत सारे लोग जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग्स यूज करने लग गए, तो तब से पॉपुलर होने लग गया क्लाउड.
With the advent of introduction of cloud computing, person could access the system from their respective location, working remotely. What do you mean by the word remotely? What do you mean by the word remotely? Remotely means from a distance. Anywhere. Yeah, not at the same location where your office is. Work remotely during the lockdowns and ensure that accounting process and reporting requirements did not suffer adversely. अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं रुका क्योंकि सब लोग अपने घर से काम कर सकते थे. क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको ये बहुत सारे क्या मिलेंगे? बहुत सारे जुक बॉक्सेस मिलेंगे. बहुत सारे जुक बॉक्सेस मिला के बनता है एक डेटा सेंटर, और मल्टीपल डेटा सेंटर से बनता है ये मल्टीपल डेटा सेंटर से बनता है giant server farms. So cloud computing is the use of computing resources as a service through internet, typically the internet. क्या आपने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज किया है? जी हां. अगर आपने कभी ड्रॉप बॉक्स यूज किया है या फिर आई क्लाउड यूज किया है, या फिर अगर हमने जीमेल या गूगल एप्स में कोई भी यूज किया, इसमें से क्या यूज किया बताओ? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बोलो. सर जीमेल तो हमने यूज किया है, गूगल ड्राइव भी हमने यूज किया है. दैट इज नथिंग एल्स बट द क्लाउड. या दिस इज या करेक्ट. क्रोम तो हमने डेफिनेटली यूज किया है. ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम पहली बार यूज करते थे क्रोम डाउनलोड करने के लिए. नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कौन कौन देता है? एनी क्लू? हु आर द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? कम ऑन, कौन कौन सर्विस देता है क्लाउड कंप्यूटिंग की? सर डेफिनेटली एक नाम तो हमारे आगे ही है. कौन सा? Of course. So guys, Hewlett Packard, HP, Google, Dell, IBM, Microsoft and Amazon और भी companies है. These are the prominent companies that we are well versed with. Give me the full form of IBM. IBM. आंगी, मोहित, सोनू, जेडी, काजल, नीरज, प्रियंका, संजना. IBM. Never heard of IBM? जब कोई एप्पल नहीं था, जब कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, जब कोई गूगल नहीं था, तो कंप्यूटर्स बनाने का पूरी जिम्मेदारी आईबीएम पे थी. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, आईबीएम. चेक करना, अमेरिकन कंपनी है. चेक करना आईबीएम का सीईओ कौन है. एक इंडियन है आईबीएम का सीईओ. एनीवे, वी मूव अहेड. ये सारा क्लाउड सेंटर्स, ये सारा ऑप्टिकल जुक बॉक्सेस आपके डेटा सेंटर पे होता है, जहां जहां आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है. ठीक है, फेसबुक का सारा डेटा सेंटर, लेटेस्ट डेटा सेंटर कहां है? एनी क्लू? फेसबुक्स लेटेस्ट डेटा सेंटर इज इन लुलिया, स्वीडन. और ये बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है. बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है डेटा सेंटर मेंटेन करने के लिए. इसलिए यू विल गेट बिगीज इन दिस. तो चलो, शैल वी प्रोसीड? कॉमन एप्लीकेशंस और केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, शैल वी? सो सबसे पहली जो सर्विस होती है, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, सबसे पहली जो सर्विस होती है वो होती है स्टोरेज. सबसे पहली जो सर्विस होती है वो होती है स्टोरेज. एक साथ मैं आपको दिखा देता हूं. तो हमारी सारी जो जीमेल्स है, ठीक है, हमारी जो सारी जो जीमेल्स है, इसका एक जीमेल के लिए पैसे लगते हैं. ट्रू और फॉल्स? जीमेल के लिए पैसे लगते हैं. ट्रू और फॉल्स? कम ऑन. एक लिमिट तक पूरी होता है, उसके बाद पैसे. करेक्ट. 15 GB ऑफ स्टोरेज यू हैव गॉट. सो अगर 15 GB खत्म हो गया तो गेट मोर स्टोरेज. तो फिर 100 GB का प्लान है. चेक इट आउट. 100 GB का प्लान है. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर फ्री में नहीं कर रहे, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे. ठीक है, 100 GB का प्लान है फॉर 35 रुपीज पर मंथ. सर मुझे ज्यादा डेटा चाहिए. 200 GB का प्लान है फॉर 50 रुपीज पर मंथ. 2 टेराबाइट का प्लान है फॉर 160 रुपीज पर मंथ. गाइस, ये नहीं हमें स्टोरेज का फैसिलिटी दे रहे, क्या क्या फीचर्स दे रहे इसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 TB ऑफ स्टोरेज, एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट, शेयर अप विद 5 अदर्स.
देन मोर गूगल फोटोज एडिटिंग फीचर्स, एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट्स, मॉनिटर द डार्क वेब वगैरह वगैरह। सो गाइस सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे पहला क्लाउड स्टोरेज। आ जाओ। Services like Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive offer cloud storage solution that allows user to store and access their files from data from anywhere with an internet connection. You can save documents, photos and other application in the cloud. Data उनके पास रहेगा, उनकी जिम्मेदारी रहेगी. And you can synchronize them across multiple devices. यानी अगर मुझे अपना Gmail एक्सेस करना है, if I were to access my Gmail सारी मेल्स या फिर मेरा जो भी सर्वर में मेरा क्लाउड में डेटा है उसे एक्सेस करने के लिए मुझे हमेशा यही लैपटॉप यूज करने पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स? हमेशा ये लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। क्या मैं वही जीमेल आईपैड से भी यूज कर सकता हूं? क्या मैं वही मेल इस मेरे फोन से भी यूज एक्सेस कर सकता हूं? एक ही मेल में मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकता हूं। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। यानी आप क्लाउड का स्टोरेज सिर्फ एक डिवाइस से नहीं, मल्टीपल डिवाइसेस से वही डेटा आप ईमेल का आपका डेटा, ड्राइव का आपका डेटा लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, टैब से भी एक्सेस कर सकते हो और डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी एक्सेस करते हो। सबसे पहला क्लाउड स्टोरेज। बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे, जरूर। पूरा पूरा वेटेज इस चैप्टर का कितना है? एनी क्लू? एक मिनट लगेगा, देख ही लेते हैं। Alright guys, yes, एथिक्स एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, ये दोनों सेक्शन मिला के 5 to 10% है। तो आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट कितना, कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना चाहिए आपने? 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर करना आप, ठीक है। और उनको पता है, इंस्टीट्यूट को, आईसीआई को पता है कि नहीं पढ़ते स्टूडेंट ये वाला टॉपिक, ठीक है। सो गाइस या दैट्स दैट। तो ये जो पहला है स्टोरेज का फैसिलिटी, अरे यार आपने स्टोरेज फैसिलिटी दे दिया, अब एक काम करो ना, हमको सॉफ्टवेयर भी बना के दे दो ना, आप ही बना के दे दो सॉफ्टवेयर, हमें कोई झंझट चाहिए ही नहीं, ठीक है, बना के दे देंगे आपको सॉफ्टवेयर। SaaS कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS platforms provide cloud-based software application that users can access and utilize via the internet. Examples include Salesforce for customer relationship management, Slack for team collaboration, QuickBooks for online accounting and financial management. So guys, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर है जो, ठीक है, पर्टिकुलर काम के लिए क्लाउड से ही बना के मिलेंगे, आप वहीं से एक्सेस कर लो, वहीं पे हमारे पास ही अपना डेटा स्टोर कर लो। जैसे हमारा टैली है तो यूएस में बहुत फेमस है क्विक बुक्स। सो गाइस, अब तक हमें स्टोरेज का फैसिलिटी की बात हो रही थी, अब एक काम करो ना सर, आप सॉफ्टवेयर भी हमें क्या कर दो, खुद बना के दे दो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पूरे सर्वर्स, ये देखो ना, ये सारा डेटा सेंटर्स क्या हम मेंटेन कर सकते हैं? बोलो, इतना बड़ा जायंट सर्वर फार्म क्या हम मेंटेन कर सकते हैं? बोलो,
सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईआस प्रोवाइड करता है। ईआई सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, आपको हम सर्वर्स दे देंगे, आपको हम स्टोरेज दे देंगे जो हमने पढ़ा है, आपको हम नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, और हम पे एज यू गो बेसिस पे यूज करेंगे। पे एज यू गो, पे एज यू गो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। अगर आपको 100 GB यूज करना है तो 100 GB का प्लान था, 200 GB यूज करना है तो 200 GB का प्लान था, 2 TB का अगर आपको स्पेस चाहिए तो 2 TB का प्लान था। करेक्ट है गाइस? जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा पे करते चलना, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड Amazon वेब सर्विसेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। सर ये तो बताया नहीं आपने, ये देखो, दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, लिख लो ये कहीं। These are the popular cloud computing vendors or cloud computing service providers. Please write this down. List बना लो ये। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स जो ये सर्विस देते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. These platforms allows the business to scale their IT infrastructure based on the demand. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, सिस्टम दे देंगे हम लोग, सर्वर्स दे देंगे। स्टोरेज चाहिए, ऑप्टिकल जुक बॉक्सेस दे देंगे। नेटवर्किंग चाहिए, वीपीएन चाहिए, हम प्रोवाइड कर देंगे। डू यू रिमेंबर वीपीएन? वीपीएन ऐसा कुछ याद है? नेवर हर्ड ऑफ वीपीएन? वर्चुअल प्राइवेट, या वर्चुअल, हम दे देंगे आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्लेटफॉर्म। हम दे देंगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। These platforms allow business to scale and upgrade their IT infrastructure based on the demand without need to have any kind of physical हार्डवेयर। आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर मेंटेन नहीं करना, आपको कोई जुक बॉक्सेस मेंटेन नहीं करना, आपको कोई क्लाउड डेटा सेंटर मेंटेन नहीं करना, आपको कोई डेटा फार्म्स मेंटेन नहीं करना। ये सब कुछ कौन करेगा? कौन करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद, सर आप मत बना के दो हमको सॉफ्टवेयर, हमारे पास खुद ही एकदम नायाब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, बिजनेस कंसल्टेंट है। सर हमारे पास टीम में हमारे पास है नीरज, संजना, प्रियंका एंड मोहित, जो लोग, हम लोग खुद ही सॉफ्टवेयर बना देंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सर लैंग्वेज चाहिए, जावा चाहिए, ओरेकल चाहिए, वो नहीं है सर हमारे पास। ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं बना के देते आपको। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जो भी बेस सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हम दे देंगे। इसको कहते हैं पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PaaS providers offer cloud-based platforms that enables developers to build, deploy, and manage application without the complexity of infrastructure management. इन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए, बेसिक इंफ्रा चाहिए, वो दे देंगे। तुम बनाते बैठो सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऐप सर्विसेज एंड गूगल ऐप इंजन। यानी ऐप इंजन यानी क्या? गूगल ऐप बनाने के लिए इंजन प्रोवाइड करेगा। इंजन यानी प्लेटफॉर्म। अब उस इस इंजन में लैंग्वेजेस आ जाएगी, इंजन में सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टूल्स है वो।
कॉमन क्लाउड एप्लीकेशंस या केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहला था क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सुपर कूल। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चंस पूछ लू, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लू। आर यू रेडी? मुझे मुझे सर, हमको सॉफ्टवेयर कुछ नहीं बनाना, आप ही हमें दे दो। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आप बना दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन सी सर्विस यूज करूंगा? सॉफ्टवेयर। सर हम हमारे पास खुद ही डेवलपर्स है, ये प्रियंका और ये सब लोग एकदम जबरदस्त इंजीनियर्स है, ठीक है, इनकी हेल्प हम ले लेंगे। बस हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दे दो, लैंग्वेज वगैरह। कौन सा सर्विस यूज करेंगे? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सर मुझे नेटवर्किंग और स्टोरेज दोनों की जरूरत है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करूं? करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सिर्फ मैं अगर स्टोरेज मांगता हूं तो, सिर्फ मैं स्टोरेज मांगता हूं तो क्या इतना डिफिकल्ट है? क्या आईटी बोलो? क्या इंटरेस्टिंग है? क्या इंटरेस्टिंग है आईटी? सच बता रहा हूं, जो अच्छी जॉब्स है ना वो टेक में ही है, इवन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एनीवे, वी मूव अहेड। यूज कियो? यूज कियो? कैसी बात कर रहे हो? आपसे कनेक्ट हम मीट पे हो रहे हैं, करेक्ट है? So guys, common applications of cloud computing में next is cloud based communication and collaboration। ये जो हम लोग अभी टीम्स पे हमारी क्लास चला रहे हैं, जैसे जूम पे अपनी क्लास चलाते हैं, इसके लिए आपको अलग से क्या मेहनत करनी पड़ेगी बताओ? बोलो। अलग से हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ खरीदना पड़ा? बोलो। Applications like Microsoft Teams, Google Workspace, and Zoom provide cloud-based communication and collaboration tools that facilitates real-time messaging, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम जो कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं। तुम लोगों ने, काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए होंगे, एक मिनट देख लेते, मैसेजेस चेक कर लेते। मैंने चेक नहीं किया। यस प्रियंका, सारे आंसर्स आई गेस आप मैसेजिंग के थ्रू ही कर रहे हो। सो गाइस दैट कैन बी डन, रियल टाइम मैसेजिंग कैन बी डन, तभी के तभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, फाइल शेयर करनी हो जाएगी, पूरा प्रोजेक्ट मैनेज हो जाएगा। क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सो गाइस एमसीक्यू गोल्ड है ये, बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में कि कौन सा एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद ये सब कौन है बोलो? Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब कौन है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीज आर। सो गाइस इन सबके कोई ऑफिसेज नहीं है, सारा डेटा हमारा क्लाउड पे ही है। क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स। Few platforms enable business to set up and manage online stores using cloud infrastructure. These platforms provide features like product catalogs, payment processing, inventory management, and customer analytics. So guys, few platforms enable business to set up and manage online store using cloud infra। इन्हें पूरा जो ऑनलाइन स्टोर है वो हमारा खुद का मेमोरी पे नहीं चलता, खुद के स्टोरेज पे नहीं चलता, खुद के सॉफ्टवेयर पे भी नहीं चलता। ये सब कुछ हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग्स, जस्ट अ मोमेंट। इसको क्या कहते हैं जो आ रहा है स्क्रीन पे? these are all what? प्रोडक्ट कैटलॉग्स। ये जो हमारे सामने है ये सारे क्या है? प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, ठीक है। और इसका सारा इसका सारा मैनेजमेंट एक ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर हमें देगा, ठीक है। यानी अगर किसी को नया नया प्लेटफॉर्म सेटअप करना है ई कॉमर्स का, तो गाइस आपको पूरा सर्वर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स से काम बन जाएगा आपका। ओके, एंड लास्ट वन इज बिग डेटा एनालिटिक्स।
Big data analytics. Cloud computing enables organization to process and analyze large volume of data efficiently. Services like Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Azure Data Lake Analytics provide scalable infra for big data processing and analytics, empowering business to derive valuable insights from their data. मेरी पीएचडी ई कॉमर्स में हुई है, तो जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मुझे पता चला था कि फ्लिपकार्ट इंडिया में 1 मिनट में लगभग 1200 ऑर्डर जनरेट करता है। 1 मिनट में कितने? 1200 ऑर्डर्स, यानी 1200 यूजर्स चीजें खरीदते हैं। किस पे से? सिर्फ फ्लिपकार्ट में से। अब ये 1200 यूजर्स पर मिनट, तो पर डे कितना हो गया? जाने दो, इट्स अ लॉट ऑफ यूजर। वॉलमार्ट में तो हर दिन 10 लाख कस्टमर शॉपिंग करते हैं। वॉलमार्ट 10 लाख इज द नंबर एवरी डे। इतना सारा डेटा क्यूमुलेट होता है। अब ये जो हमारा कस्टमर है, ये अगली शॉपिंग क्या करेगा, इसको प्रेडिक्ट करके हमें रेडी होना होता है। इसके लिए हमें चाहिए होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये लार्ज डेटा को प्रोसेस करने की सर्विस, भी हमें कहां से मिल जाएगी? क्लाउड से मिल जाएगी, बिग डेटा एनालिटिक्स। सो गाइस, ये है सारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस और cases of cloud computing, right from cloud storage, software as a service, infrastructure as a service, platform as a service, cloud based collaboration and communication, cloud based e-commerce and big data. आपको ऐसा पूरा सीरियली नहीं पूछेंगे, वो एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बट मुझे लगता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ऑलराइट, तो अगर कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो रेडी रहोगे? यस सर। All right, all right, all right, all right, all right, all right. चलो, वी मूव अहेड। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तुम बता दो यार, ऑलरेडी लिस्ट आ गई। क्या बेनिफिट है? सबसे पहला इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी। मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया था आपको? तो सबसे पहला बेनिफिट है इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। यार बार बार एक चीज तो जरूर मांगते हो लोग, क्या? इंटरनेट कनेक्शन। This has increased accessibility and flexibility to accountants and business owners, allowing them to work remotely and collaborate in real time. Followed by enhanced security. हमारे को टेंशन ही नहीं है, सारा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी? किसकी जिम्मेदारी बोलो? Correct, cloud service providers. Cloud-based accounting system provides software providers typically offer advanced security features such as encryption, firewalls, multi-factor authentication, helps in protecting of sensitive financial data from cyber threats and data breaches. तो guys, ये लोग इतने मंझे हुए हैं, these are big players, they have a big team, तो इनका सिक्योरिटी लेवल भी अच्छा होता है, उनके पास सारी सर्विसेज होती है। खुद करने जाओगे तो महंगा भी होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा। इंक्रीज स्केलेबिलिटी, अपग्रेड कर सकते हो आप आसानी से। स्केलेबिलिटी ये वर्ड हमने कौन से एप्लीकेशन में पढ़ा था? जल्दी बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ। स्केलेबिलिटी ये वर्ड कौन से एप्लीकेशन में पढ़ा था? आज ही पढ़ा, अभी 10 मिनट पहले। ई-कॉमर्स वाले में। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इजी टू स्केल। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस स्केल अप करनी है ना आपको। वीपीएन अगर हाई पावर का चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। सर्वर ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड के चाहिए वो मिल जाएगा। आपकी स्टोरेज की स्पीड कैपेसिटी आपको 100 जीबी से 200 जीबी करनी है, हो जाएगा। 200 जीबी से 2 टेराबाइट करनी है, हो जाएगा। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी। तो गाइस, आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो चुटकियों में, चुटकियों में, ठीक है? जैसे so sorry, जस्ट मोमेंट, दिखाता हूं आपको कैसे। व्हाट इज दिस? फेसबुक कहां से ओपन हो रहा है भाई? अरे ओके, आपको देखना है कैसे कैसे फुल हो जाता है। यानी अगर जस्ट चेक दिस आउट, ओके। पहला वाला जो मेल था वो तो बहुत ही खाली था।
चेक दिस आउट, ये कितना ओवर यूज्ड है देखो, आप देखो, जस्ट चेक दिस आउट, कितना ओवर यूज्ड है, कितना फुल है, 15 GB फ्री है, और मैंने कितना यूज कर रखा है इसको, कैसे यूज कर रखा है, 16.2। ओए हेलो, ये 1600 GB यूज हुआ है, जबकि फ्री कितना है, 15। तो इसका मतलब अपग्रेड कैसे करने दिया उसने मुझे, कैसे करने दिया, पैसे लिए हमने। पैसे ले लेना। 1600 GB, ठीक है, एनीवे फॉरगेट दैट, 1600 GB मैंने डेटा कभी ना कभी खरीदा होगा, Yes. है ना गाइस, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, 3 सेकंड के अंदर ये अपग्रेड हो जाता है, 3 सेकंड के अंदर, स्केलेबिलिटी इज वेरी 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 क्विक. So cloud-based account allows business to scale up and scale down based on their changing needs. यानी आपको पहले बहुत जरूरत थी तो बढ़ा लो डेटा, आपको जरूरत नहीं है तो कम कर लो. As the business grows, it can easily add new users and features without having to invest in additional hardware or software. Okay, we move ahead. सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूस कॉस्ट. मैं तो पहले ही बोल रहा हूं तुमको, तुमको कोई भी बेनिफिट का क्वेश्चन आया तो पैसों के नाम पे वहां सो जाना, बिल्कुल समझ रहे हो. Yes, sir. Yes. मैं क्या कहता हूं, ऐसा जबरदस्त डेटा सेंटर मेंटेन करना हमारे बस का है क्या एज अ कंपनी, बोलो. No, sir. रेंट पे ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है, रेंट इज ऑलवेज चीपर, रिड्यूस कॉस्ट. क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टिपिकली रिक्वायर्स लेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, पहले पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट. This can help the business to save money in IT expense and redirect those funds to other areas. For example, cost of installing Microsoft Office suite on a laptop or desktop is far more expensive than subscribing to Office 365, which is web-based download. Further, the web-based download also offers options of continuous free updates, unlike Sur Office offline counterpart. So guys, वही सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर है, रेंट पे ले लो तो आसान हो जाएगा, खुद से आप खुद से सॉफ्टवेयर खरीदवा लो तो थोड़ा महंगा हो जाता है. तो बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट क्या लिखोगे, पैसों के नाम पे रो देना वहां पे, रिड्यूस कॉस्ट. उसके बाद कोलैब करना है, बहुत आसान है. क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन अलाउज मल्टीपल यूजर टू कोलैबोरेट इन रियल टाइम, reducing the need for manual data entry and communication. This can help to streamline workflows and reduce errors caused by miscommunication. So guys, आप साथ में कोलैब कर सकते हो, और स्पेसिफिकली थैंक्स टू व्हाट, कौन से कॉमन एप्लीकेशन है केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है जिससे कोलैबोरेशन पॉसिबल होगा, जल्दी बताओ, कोलैबोरेशन पॉसिबल होगा, जल्दी बताओ. हो गया, टाइम इज अप. Cloud-based communication. करेक्ट, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. इससे मिसमैनेज नहीं होता, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है. दिस कैन हेल्प टू स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज एंड रिड्यूस एरर कॉज्ड बाय मिसकम्युनिकेशन. लिखो वहां पे, दिस प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन को अंडरलाइन करके लिखो, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेट. करेक्ट. Am I audible, guys? Voice. Yeah. Streamline collaboration, and the last one is improved reporting and analytics. Cloud-based accounting software often includes powerful reporting and analytics tools that allows the businesses to gain deeper insights into their financial performance. This can help the business make more informed decisions and identify the areas of improvement. Improved reporting and analytics. Raise your hands. Don't leak the answer, okay? सबको मौका देंगे. क्लाउड का कौन सा एरिया है जिससे एनालिटिक्स इंप्रूव होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा एरिया है जिससे एनालिटिक्स इंप्रूव होगा. वेरी गुड सोनू, वेरी गुड जेडी, कम ऑन, इट्स इजी, व्हाट आर यू डूइंग मैन.
All right, yes. Anyone who can give me the answer? सोनू बोलो. बिग डेटा एनालिटिक्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिग डेटा एनालिटिक्स. सो गाइस जो सारे केसेस है, एप्लीकेशंस है, उसी से हमें बेनिफिट्स मिल रहा है. सो गाइस दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, एनहांस सिक्योरिटी, इंक्रीज स्केलेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन एंड इंप्रूव रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स. सुपर कूल. दीज आर द बेनिफिट्स. ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए. राइज इन इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स. राइज से हमें 4 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं. IN फॉर इंक्रीज एंड इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. प्लीज राइट इट डाउन. Are we done? Yes, sir. All right. So guys, आ सकते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो इंसाइटफुली मुझे लगता है, तो वो प्लीज रेडी करके रखिएगा. प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट CA फाइनल एग्जाम. यू नो इट. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? डू नॉट अंडर एस्टिमेट CA फाइनल एग्जाम. ट्रस्ट मी, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हमें नहीं बना, तो गाइज सच बता रहा हूं, अगर हमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना, तो थ्योरी के 4 मार्क्स बहुत क्रूशियल रहेंगे. राइट गाइस, व्हाट से? Yes, sir. यस. So, following are the potential challenges which may emerge in cloud computing. सबसे पहला, it is prone to attack by the hackers. Data steal हो सकता है. Since cloud-based software are completely online, they are prone to attack from hackers and could steal data and passwords and compromise the integrity of processed data, thereby causing disruptions to the business. So guys, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे अटैक हो सकता है. ये तो प्रॉब्लम ही है ना, ये तो टेक्नोलॉजी का इश्यू है आजकल, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. उसके बाद स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्टिविटी. क्लाउड का डेटा एक्सेस करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंटरनेट, और इंडिया में हर सिटी में अच्छा इंटरनेट थोड़ा मुश्किल है. क्या कहते हो? यस सर. Strong net connectivity is must for cloud computing to be a success, though there has been huge surge in the network thanks to Geo surge यानी upgrade and mobile connectivity in the past decade. Connectivity in non-metros, tier 2 and tier 3 cities is not well developed, which could create accessibility issues to the users of cloud based. तो हमारा जो फंडा है ये, it will come to a standstill अगर क्या नहीं हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं हो तो गाइस एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट लेट्स स्टडी दिस. एक बार देख लेते हैं. द फाइनेंस टीम ऑफ XYZ company consisting of CA and financial analyst collaborates on the preparation of income statement. They utilize cloud-based collaboration tool like Microsoft Teams and Google Workspace to enhance their efficiency and ensure accuracy in reporting. तो गाइस देखो, दो लोग अलग अलग लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. कोलैबोरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया क्लाउड का? माइक्रोसॉफ्ट टीम. और डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज किया है? गूगल वर्कस्पेस. ओके, नाउ तो ये आ गया क्लाउड का काम. यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट और शेयर डॉक्यूमेंट्स. क्लाउड का स्प्रेडशीट का नाम बताओ. अरे मेरे ऑफिस वालों, क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट का नाम बहुत आसान है. गूगल शीट्स. करेक्ट, गूगल शीट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. उनको बोलो, इतना अच्छा नॉलेज है तुम लोगों के पास, उनको बोलो फेल करके दिखाए. सही है ना? ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं.
उनको बोलो फेल करके दिखाए, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है। क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट और शेयर डॉक्यूमेंट, द फाइनेंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस इनपुट द रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा इनटू द इनकम स्टेटमेंट टेम्पलेट. They update revenue figures, operating expenses, cost of goods sold, and other relevant information, ensuring accurate and comprehensive data collection. Through cloud collaboration platforms, team members can work on income statements simultaneously, regardless of their physical location. They can review, edit, and make real-time updates to the document. For example, the finance team in Mumbai can update the revenue figures based on the sales data received, while the team in Bangalore can revise the operating expense based on the cost of information provided. So guys, अलग-अलग लोग एक साथ काम कर पा रहे हैं collaboration में. यहां से एक डेटा एंट्री कर रहा है, वहां पे अपडेट हो रहा है, दूसरी जगह से डेटा एंट्री कर रहा है, वो भी अपडेट हो रहा है. क्लाउड बेस्ड टूल्स ऑफर वर्जन कंट्रोल फीचर्स अलाउइंग द टीम टू ट्रैक चेंजेस मेड to the income statement over time. This ensures that the latest version is always accessible and helps in maintaining an audit trail from any revisions or modification. Once the income statement is prepared, the finance team can use cloud-based communication channels such as instant messaging, video conferencing to discuss the document. The team lead or finance manager can review the income statement, provide feedback, and approve the final version. Cloud-based collaboration ensures that all team members have secure access to income statement. यानी जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लोकेशन. यूजर एक्सेस कंट्रोल, यानी आपको लॉगिन के बिना आपको एक्सेस नहीं मिलेगा. यूजर एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन कैन बी मैनेज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल, मेंटेनिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी. यानी सबको डेटा एक्सेस नहीं मिलेगा, डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योर रहेगा थैंक्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग. ऑलराइट, so yeah, that was that about it. Are we ready for the quiz? Shall we test your knowledge? All right, guys. So first question, every question you get 30 seconds to answer. Whatever we have discussed today, उसी basis पे question है, कोई ऐसा extra curricular question नहीं होगा. Do not cheat. Answer fast, answer quickly. Are we ready? Who was the winner in the last quiz? Who was the winner? Me, sir. Okay, Angi, just a moment. Angi, if you happen to win it today, okay, if you happen to win today's quiz, okay, I'll gift you this book. I'll make sure that this book is delivered to you. All right? Okay, sir. Okay, just read what this book is about. और कोई और जीते तो सर? नहीं ना, आंगी ने दो कंसेक्यूटिव जीते, तो अगर आप आज का क्विज जीते और कल का क्विज जीते तो आपको दे दूंगा मैं. सुपर कूल. Yes, sir. All right, चलो, all the best, do well. 10 steps to the boardroom, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बनोगे तो कैसे पहुंचोगे वहां, इसकी बुक है ये. एनीवे, चलो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds, आंसर करेक्टली एंड आंसर फास्ट. गो गो गो. Which Ind AS establishes principles for the presentation and preparation of CFS when an entity controls one or more other entities? Easy question this is. Ind AS 1110, Ind AS 104, Ind AS 107 and Ind AS 110. The correct answer was Ind AS 110. क्या हमने पढ़ा है आज के सेशन में ये? Yes, sir. All right, let's check out the leaderboard. Angi was the winner last time. She's second right now. Priyanka, no. She is joined first with Angi. Priyanka and Angi are joined first, followed by Sanjana, 2 points behind, followed by Jenish, 2 points behind, then Kajal, then Lola, and then Ronald. MS, Sonu, and Neeraj, they have disappointed big time, but any which ways, I guess आप जल्दबाजी कर गए, right? Yes, sir. जल्दबाजी में वो. Yes, sir. First. I understand. एक मिनट, मेहनत से बनाया ये क्विज, ठीक है, रैंडमली नहीं बनाया है, समझ रहे हो क्या? कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है क्वेश्चंस. सुबह गुल.
All the best for the next question, guys. Go, go, go. Cloud computing refers to the delivery of computing services over the cloud, internet, software, client server architecture. Everyone has voted, and rightfully so. The correct answer is over the internet. And cloud computing refers to delivery of computing services over the cloud. Wow. Internet is the mainstay of cloud computing. So अब थोड़ा difference आ जाएगा. Angi, are you kidding me? This was the easiest question. Angi. सर बाद में बत Angi, what is this? You missed out on a great book. मेरा favorite है ये. Anyway, so Janish is the fastest and he gets the benefit of it. 100 points behind is Priyanka. Priyanka, it was very slow. Kajal, Lola, and rest of us have. Anyway, chalo. All right, guys, here we go. 3 more questions to go. You can still turn the tables around. Go, go, go. ओ पढ़ना पड़ेगा इसको तो बहुत सारा है. The adoption of RPA in financial reporting improves accuracy, enhances efficiency, and frees up valuable time for finance professional to focus on more on the strategic activities. Absolutely correct. Well done, guys. Let's check out the leaderboard. Janish, are you kidding me? Priyanka, are you kidding me? All right, Kajal Chawla. Oh my goodness. Angi was the fastest in this question. She's trying very hard. All right, Kajal, well done. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. All right, guys, 2 more questions to go. Let's check it out. Are you ready? Shall we? Go, go, go. Google App Engine is which case of cloud computing? Now, this was easy, provided you know. Google App Engine, huh? App banane ke liye engine. The correct answer is platform as a service. Oh my goodness. Let's check out the leaderboard. Kajal is the winner today, by all means. She's leaving no stone unturned. Kajal, do you really want this book very desperately? Is it? यस सर Oh God. Well done. बहुत बढ़िया. So काजल को हराना थोड़ा मुश्किल है. नीरज, लोला. Who is Lola? लोला, who is Lola? नहीं, उसने नाम लिखना भूल गया. देखिए, लोला, रोनाल्ड एंड संजना. ठीक है. एक चांस है कि आप काजल को नहीं, संजना के पास नहीं है चांस, काजल को रहा है. नीरज, लोला एंड रोनाल्ड आप तीनों के पास है. काजल, मेरा फर्स्ट रॉन्ग हो गया था गलती से. एनीवे कोई नहीं, यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना. इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. ऑलराइट गाइस, गो गो गो. Cloud-based accounting software allows business to easily increase or reduce based on their changing needs. This explains the benefit of cloud computing. Which benefit of cloud computing? CCNA cloud computing. Of course, the answer is increased scalability, and most of you have answered it correctly. Guys, let's check it out. The leaderboard, final leaderboard. Kajal is surely the winner of this quiz. Kajal, well done. ऑलराइट, तो वादे के मुताबिक मैं आपको बुक तो नहीं दे पाऊंगा आज, बट काजल, इफ यू विन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल, आई डिलीवर दिस बुक टू यू. सुपर कूल. Yes, sir. All right, guys, I hope you liked the session. I hope you liked IT with accounting. यस सर Yes, sir.
All right, great. Angi, all the best. Make a comeback. We still have some more lectures to go for this chapter, and let's make the most of it. Super cool. Yes, sir. All right, guys. This is Pavan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.